we are going to use this slides, special NCERT slides from the internet, and we are going to start with the biotechnology unit, and we are going to make two videos for the entire chapter. So let's start on without any further ado, and let me tell you one thing. You should have read no NCERT. This is where we are reading NCERT. So yeah, you should have at least an idea about this chapter beforehand, or you should have read notes of this chapter. So after this, you will complete your revision, right? So yeah, it is more of a revision type. Yes. So shall we start? Okay. So always start the chapter with this little introduction of the unit. So here we are doing the same. Let me just take out the pen. Okay, so yeah, so biotechnology, right? So ever since the days of the Renaissance campus science and okay, so you have to read this whole physics, chemistry gave rise to engineering, technologies, industries, work for human comfort, welfare, and all of that. The best principle and barrier and some application are related discussed in this unit. Yes, basic principles. Okay, so it includes two chapters. We are going to complete this by today. Okay. So yeah. Oh, so we have to do this thing. So yeah, this is also important as nowadays, with all of that. But in this chapter, it is not very much important. Most of the botany chapters have very important data here. Okay, so one more thing I want to discuss with you all, whoever is watching this video. I want to ask you, from all the videos I had made, whether you liked it or not. Please let me know through the comment section, through my Insta ID or whatever. I will put the Insta ID in the description. I want to know that how are my videos? Means how much do you like them or how much do you hate them? It's up to you. Yeah, you can comment anything down below, even if it's hate. But please, yeah, comment, because improvement is the major thing, I think. And I want improvement in whatever I am doing from the past 1 year. So let me know what are your thoughts upon this channel, so we can do more good things and we can cover more necessary things which are required in real life, you know. So yeah, we are not just wasting our time. I don't want to waste my time also and your time also. So yeah, I'm going to do some really helpful things, so it can help you in reading the chapter, revising the chapter, for board, for NEET, for anything. But yeah, it should be helpful in any way. Okay. So yeah, this was my plea to you. Hope you get
my message. Okay, so let's start off and we are going in the 2x speed very fast. ठीक है, 2x नहीं 1.5x कर सकते हैं 1.25x. Okay, so what are the main topics? So the main topics are principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology and processes of recombinant technology. ठीक है, तो ये तीनों हैं हमको पढ़ने हैं. तो पहले हमारे को पहले पेज में या फिर यू कैन से इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू डील विद द definition and why we are reading this. Mostly the surface of the chapter. Yes. So biotechnology deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms, right, to produce products and processes useful to humans. In this sense, making bread, wine, which are all micro-mediated processes, could also be thought of from biotechnology. However, it is used in a restricted sense today. हम आज restricted sense में क्यों बात करते हैं? To refer to those which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale. Yeah. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, ठीक है, leading to a test tube baby, synthesizing a gene, using it, developing a DNA vaccine, correcting a defective gene are all a part of biotechnology. Now, here comes the more important part. What is the full form of EFB? European Federation of Biotechnology. It gives us the definition of the word biotechnology. What is the definition? Okay, both students have to remember that this definition is very important. Otherwise, for need, it's moderate framework, not very important, right? So, the integration of natural science, organisms, cells, parts, thereof, molecular analogy for products and services. Full रट्टा चीज़ है ये, ठीक है? Okay. Okay, so now we are going to start off with the प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखो, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से पूछा जाता है द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. और अगर हम नीट के लिए देखें तो ये 2 पॉइंट मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट हैं, बट इतने नहीं है. बस हेडिंग याद रखो, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, दीज आर द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री, है ना, of the genetic material, whether it's a DNA, whether it's RNA, right, and to introduce these into the host organism, just change the phenotype of the host organism. Then second is the bioprocess engineering. What is bioprocess engineering? It is mainly the maintenance of the sterile microbes for large quantities manufacturing, right? Yes. Then there is some debate on why you should opt this technology and what are the simple processes, like the overlook of the chapter. So let us now understand the conceptual development. Concepts क्या हैं इसके पीछे? You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Obviously, the former means जो पहले वाला है, it provides opportunities for variation and formulation of unique combination of the genetic setup, some of which may be beneficial to the organisms also and as well as to the population also, है ना. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख रहे हैं कि ये वेरिएशन के लिए काम आता है. इस सेक्सुअल का देखें तो इट परमिट्स वेरिएशन, नहीं करता है वेरिएशन, इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये इसका एडवांटेज है. देन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम बोलें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो होता था, इट लीड टू
इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। इसमें जो है ना अनडिजायरेबल जीन्स आ जाती थी। अब अनडिजायरेबल जीन्स हमको चाहिए नहीं, तो हम क्या करें, हम ऑप्ट करते हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इट इन्वॉल्व्स जीन क्लोनिंग, involves gene transfer and overcome the limitation. What limitation? Undesirable genes get included into the recombinant DNA. ठीक है? Allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. Right? Do you know the likely fate? अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये भी अच्छा था ये पार्ट। अच्छा, likely fate of a piece of DNA। क्या होता है likely fate of a piece of DNA? तो देख, which is somehow transferred into an alien organism। अगर आपका एक DNA जो है वो भी alien, ठीक है, मतलब foreign, right? उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है और वो हमने किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अब उसकी फेट क्या होगी, वो वहाँ पे जाके क्या करेगा? तो मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज इट डिड नॉट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। ये जीनोम में नहीं गया था अभी तक, है ना, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा और ना ही ये इनहेरिटेड होगा अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। और अब उसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं ओराई, ORI, which is responsible for initiating replication। ये हमेशा इनिशिएट रेप्लिकेशन करता है। तो अगर हमें किसी भी एलियन पीस का डीएनए मल्टीप्लिकेशन करवाना है, इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम व्हिच हैज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। Thus it is linked with the host organism का डीएनए and it starts multiplying itself in the host organism। और इसको हम कहते हैं क्लोनिंग, मल्टीप्लाइंग इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म known as the cloning। You can also write it from here that making multiple identical copies of the template DNA। ठीक है, let us now, अच्छा यहाँ पे बहुत ही मेन चीज आने वाली है, हम कौन सी देखते हैं। देखो देखो, let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule। इसमें कह रहा है कि हमने पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कब बनाया था। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट कौन सा आर्टिफिशियल, कौन सा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कब बना था? ये बना था 1972 में। यस, ठीक है। और पूछेगा कि कहाँ से आया था, तो फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एंड इट्स प्लाज्मिड। ठीक है, तो व्हाट इज अ प्लाज्मिड? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, and the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of the linking of gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid। अच्छा, इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने एक पॉसिबिलिटी देखी कि हम एक जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो हम एक वो जो एलियन जीन है वो हम प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। तो फिर कौन कौन सी साइंटिस्ट थे? स्टैनली कोहेन and the Herbert Boyer। Now I have to tell you that this is very important for both NEET and board, for all of the PCB and PCMB students, okay। And by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। ठीक है, then cutting किससे करी हमने? कटिंग इससे करी, कटिंग
हमने कटिंग करी थी फ्रॉम द मॉलिक्यूलर सीजर्स which are also known as restriction enzymes. Yes. Now restriction enzymes हम क्या बोलते हैं? Molecular scissors. ये हमारी बॉडी के scissors होते हैं. The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. जो हमने DNA काटा था, जिसके पास वो जीन थी एनकोडिंग वो रेजिस्टेंस वाली, उसको हमने प्लाज्मिड डीएनए में लगा दिया. एंड ये प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ वेक्टर. जैसे एक मलेरियल पैरासाइट होता है, वो एक वेक्टर का काम करता है, तो प्लाज्मिड डीएनए भी एक वेक्टर का काम कर रहा है. ठीक है. द लिंकिंग ऑफ दिस एंटीबायोटिक विद द प्लाज्मिड वेक्टर is possible from with the help of the DNA ligase. अब ये क्या है? एंजाइम है. ये क्या है? ये एंजाइम है. ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, DNA ligase. ठीक है. ये दोनों चीजें हमें चाहिए. और वेक्टर्स. ठीक है. इतना तो हो गया. आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है. ठीक है. ये क्या करता है? ज्वाइन करता है एंड्स. किसके एंड्स? एक तो जो जीन हमने लगाई है या फिर जो डीएनए हमने लगाया है उसके एंड्स. दूसरा एंड किसका? तो दूसरा एंड ये उसका करता है जो हमारा वेक्टर होता है. राइट. तो दोनों को ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है और सेम डीएनए लाइगेज से चिपका दिया जाता है. ठीक है. इट्स लाइक ये प्रोसेस एक ऐसा है जैसे आपने एक फ्लावर पॉट लिया और उसको तोड़ दिया. सपोज योर फ्लावर पॉट इज ब्रोकन. सो व्हाट यू विल डू? यू विल टेक ऑल ऑफ द पीसेस, है ना, एंड यू विल पेस्ट देम with a glue gun or with any piece of sticking thing, right? So DNA ligase acts as a molecular glue. Yes, अब ये बन के क्या आया है? ये recombinant DNA बन गया. Now when this DNA is transferred into the Escherichia coli, ठीक है, a bacterium closely related to Salmonella, it would replicate. फिर ये replicate करना start करेगा into the host DNA with the help of the DNA polymerase enzyme. DNA polymerase enzyme, ठीक है. तो ये DNA ligase भी enzyme है. ठीक है. एंड मेक मल्टीपल क्लोनिंग, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉपीज, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग. अच्छा, नाउ वी कम टू द बेसिक 3 थिंग्स, वेरी बेसिक 3 थिंग्स which are required in every procedure of making a recombinant DNA. पहले आप करोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन्स. भैया आप वो डीएनए ढूंढो जहाँ पे आपके डिजायरेबल जीन्स हैं, फिर उसको लेके इंट्रोड्यूस कर दो इनटू द होस्ट. फिर मेंटेनेंस करो होस्ट डीएनए का एंड उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. Now next we come here, which includes the tools of recombinant DNA technology. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, that what is biotechnology and what did the modern recombinant technology overcome the earlier, you can say, drawbacks of the traditional hybridization. Which are, what were the drawbacks? The drawbacks were it included undesirable genes also with the addition of desirable genes. So we do not want undesirable genes. So इसलिए that's the recombinant technology is the best and it's the modern biotechnology. फिर हमने पढ़े 2 core techniques, genetic engineering, bioprocess engineering.
ठीक है, फिर हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन 1972 बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन। प्लाज्मिड किसका था? सैल्मोनेला टाइफीमीडियम का। और हमने एक एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन हमने इसमें लगा दी थी। मोलिकुलर सीजर्स यूज करे, डीएनए लाइगेसेस यूज करे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करे एंड एस्चेरिचिया कोलाई व्हिच वाज द होस्ट, हमने इसके अंदर कर दी क्लोनिंग एंड वी गॉट द प्रोडक्ट इन द प्रोजेनी। ठीक है, अब ये ओवरव्यू था। ठीक है, ओवरव्यू था। अब इसमें टूल्स क्या क्या यूज हुए, मतलब आपके हथियार क्या क्या थे, क्या क्या हथियार थे। एक तो वो सीजर्स यूज करी थी, मॉलिकुलर सीजर्स, एक वो हथियार था, एक होस्ट हथियार था, एक वेक्टर हथियार था, एक व्यू हथियार था। तो ऐसी एंजाइम्स हथियार थे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो कौन कौन से हथियार मिल गए हमें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर्स, होस्ट। ठीक है, चलो एक एक करके अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? इन द ईयर 1963 क्वेश्चन बहुत बार ही आता है नीट में। ठीक है, नीट में कि 1963 में 2 एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे। व्हाट वर दोस? तो मैं बता देती हूँ कि वो 2 एंजाइम्स कौन से थे। तो देखो, तो फर्स्ट एंजाइम जो था वो था हमारा मिथाइलेज। यस, दैट वाज मिथाइलेज। दूसरा कौन सा था? दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये कहाँ पे लिखा है। तो देखो, ये रहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और पहला कौन सा था? मिथाइलेज, जो कि मिथाइल ग्रुप चिपकाता था डीएनए पे। ये हमें कहाँ पे मिली थी? एस्चेरिचिया कोलाई में। ठीक है, अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेट, दिस पेन इज नॉट वेरी मच गुड। देखो, अभी तक हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर्टिफिशियल कौन सा था? तो वो हमारा सैल्मोनेला टाइफीमीडियम से हमने एस्चेरिचिया कोलाई में करा था। ओके, अब आता है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? तो हम बोलेंगे HindII। ठीक है, याद कर लो। Whose functioning depended on the specific DNA nucleotide was isolated, characterized 5 years later. It was found that HindII always cut DNA molecules at a particular point and of the 6 base pairs. Yes, ये भी आता है कि अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, तो जरूर पढ़े अपने आप से भी, और या तो मार्क कर ले, अगली बार जब पढ़ोगे तो इसको जरूर पढ़ना। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, और इसी को हम क्या कहते थे? 6 बेस पेयर्स वाले सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द HindII। Besides HindII, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated over 230 strains. ये लाइन तो आ रखी है। ठीक है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से भी ज़्यादा हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, और कितने स्ट्रेन्स हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेटेड हो चुके हैं, विच आर 230।
तो कन्वेंशन अगर हम सोचें कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द नॉमेनक्लेचर, ये हिंदू क्या है ना, ये हिंदू क्या नाम किस टाइम पे किस चीज़ पर बेची गई है, तो वी आर गोइंग टू रीड दिस। अच्छा देखो फर्स्ट लेटर, जैसे हिंदू अगर हम लेते हैं, हिंदू, ठीक है, देखो ये पहला क्या है, एच, एच कहाँ से आया है, तो हम एच देते हैं, फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस, ठीक है, ये जीनस से आता है, जीनस, ठीक है, नॉट स्पीशीज, जीनस। और जो सेकंड ये होते हैं सेकंड टू लेटर्स, दे कम फ्रॉम द स्पीशीज, ठीक है, ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा एक और बात है कि ये जो हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो गया है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा डी, व्हाट इज द डी, तो डी यहाँ पे होगा साइंटिस्ट का नेम, एंड टू इज द लाइक सीक्वेंस या फिर स्ट्रेन कि कौन से स्ट्रेन से आया है ये, तो ये था इसका, ठीक है। अब हमारे को एक और एग्जाम्पल दे रखा है विच इज E41, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है ईस्चेरिचिया कोलाई RY30। देखो ईस्चेरिचिया कोलाई इज अ जीनस, कोलाई इज अ स्पीशीज, RY आर द साइंटिस्ट, ठीक है, एंड 13 इज द स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। देखो स्ट्रेन, वेट, ओके, स्ट्रेन का, ठीक है। तो रोमन नंबर्स में जो भी लेटर होगा 1 2 3, ये सब हमारे क्या करते हैं कि ऑर्डर में, ये कौन से ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे RY जो है, ये RY हमारे स्ट्रेन का नाम है, ठीक है, नॉट द साइंटिस्ट, ठीक है। अच्छा एक और हम यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, इसकी बड़ी क्लास क्या है, तो बड़ी क्लास है न्यूक्लियस, फिर फर्दर डिवाइड होते हैं एक एक्सोन्यूक्लियस में और एक एंडोन्यूक्लियस में। एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जैसे ये डीएनए है, ठीक है। अब कोई पीस यहाँ से काट रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, एंड पीसेस से, एंड साइड से, ठीक है। और कोई अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बीच में से काट रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो ये एक चीज़ यहाँ पे 2020 से नीट में आई थी, वेट, कहाँ गया पेन, इरेज कर लेते थोड़ा सा। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है,
inspecting the length of the DNA sequence, and once it finds this specific recognition sequence, it will bind to the DNA, cut each of the two strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbone, and it recognizes a specific palindromic nucleotide sequence. कौन सा सीक्वेंस होता है ये? palindromic nucleotide sequence, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच स्ट्रैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। वेट। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा? ECOR1। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे करता है, एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली। ठीक है, कि कैसे ECOR1 ये सब चीजें करता है। तो देखो, तो ये वेक्टर डीएनए ले लिया एक साइन, ये फॉरेन डीएनए ले लिया। फॉरेन डीएनए बोलो, एलियन डीएनए बोलो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, इसके डीएनए सीक्वेंसेस और इसके, राइट? तो देखो, ये स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है, राइट? अब देखो, इसके सेम स्टिकी एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले पे जाके, अच्छा बेसिकली होता क्या है? देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, देखो होता क्या है बेसिकली, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेट। अच्छा देखो, एक तरफ हमने वेक्टर डीएनए रखा, एक तरफ हमने फॉरेन डीएनए रखा। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, ठीक है, दोनों को सेम जगह से काटेंगे। G और A के बीच में से काट रहे हैं तो G और A के बीच में से ही काटेंगे दोनों में। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, G और A के बीच में से ही काट रहे हैं, राइट? वेट यार, इसमें तो कुछ अच्छा देखो, अब करते हैं। ठीक है, तो ये था। फिर हमने क्या करा, दोनों को काट दिया। फिर हमने लिया स्टिकी एंड्स बना दिए। अब ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं अभी हम बताएंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद हमने डीएनए लाइगेज लगाया एंड हमने ये जोड़ दिया। अब लग रहा है कि ये कटा हुआ था, नो, some problem। अच्छा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तो सिंगल पेज की कर लेते हैं।
this यार? I don't know. Okay, let's don't waste our time. हम तो बहुत आगे हाँ यहाँ पे थे राइट. अच्छा, कह रहे हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं. तो पैलिंड्रोम्स बेटा वो लेटर्स होते हैं जो कि आप आगे से पढ़ो, सेम आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए. ठीक है, आप आगे से पढ़ो, मतलब जैसे कोई दो ऐसे हैं तो एक साइड से आप ऐसे पढ़ रहे हो, तो नीचे से पढ़ोगे तो आप ऐसे पढ़ोगे. ठीक है, ओरिएंटेशन आपको ऐसे या फिर ऐसे ही नहीं रखना है. ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तो सेम आएगा. जैसे एग्जांपल दे रखा है मलयालम. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास हाँ जी. तो अब हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में. कुछ क्या क्या देखो, restriction enzyme cut the strand of the DNA a little away from the center. Yes. देख जैसे ये दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ. इसी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. भी रखा है इवन, देखो ऑब्वियसली इतना दिख रहा होगा. ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको. ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है. अब देखो 5 डैश पे यहाँ पे भी जी है और 5 डैश पे उधर भी जी है. कैन यू सी इट? यस वी कैन सी इट. देखो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6. तो दे आर ऑलमोस्ट 6 लेटर्स इन दिस ऑल्सो एंड ये ऊपर वाले में भी. बट हम 6 हैं तो क्या हम बीच में से काटेंगे? देखो क्या हम यहाँ से काट सकते हैं? इसका अलग, इसका अलग क्या कर सकते हैं ऐसे? नो नो, ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इधर भी 3 आ जाएंगे और इधर भी 3 आ जाएंगे. फिर क्या होगा? अगर 3 आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर हर चीज़ में सिस्टमैटिक चेंज होता है. बट नो, इससे क्या होंगे? ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे. ब्लंट एंड ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे एंड वी डू नॉट वांट ब्लंट एंड्स. क्यों ब्लंट एंड्स हमें नहीं चाहिए? क्योंकि डीएनए लाइगेज ब्लंट एंड्स से काम नहीं करता. डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स चिपकाता है. ठीक है, और उन्हीं स्टिकी एंड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है. तो जब हम चिपकाते हैं तो एक तो डीएनए लाइगेज बनता है और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, जब भी वो रिकनेक्ट हो पाता है. और हमें अच्छा देखो यहाँ पे हमें जी और ए से काटना है तो हमें यहाँ पे भी जी और ए से काटना पड़ेगा. ठीक है, ए और ए में से दोनों ए से हम नहीं काट सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ओके. देखो लिखा गया है यहाँ पे, आप देखते हैं. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर. अरे 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 little away from the center, and this leaves single stranded particles at the end, and these are called overhanging stretches, which are also known as sticky ends. And these are named so because they form hydrogen bonds with a complementary cut path. This stickiness of the end facilitates the emission of the enzyme DNA ligase. And restriction endonuclease are used in genetic engineering to form the recombinant molecules of the DNA, which are composed of DNA from different sources of genome.
then cut by the same restriction enzyme, the resulting DNA leaves the sticky ends and we can rejoin enter using the DNA ligase. Right. देखो फॉरेन डीएनए फिर से हमने लिया और ये वेक्टर डीएनए लिया. अब क्या होगा, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे विद द सेम. यहाँ पे हमने काटा, यहाँ पे हमने काटा, ठीक है. अब क्या होगा, इसको लाइगेज लगा देंगे, ठीक है. फिर ये क्या बन गया, ये देखो ये बीच का पार्ट ये इधर से आया है, ठीक है. तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. फिर ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ को बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जब ये होस्ट में आ जाता है. यस, क्लोनिंग इन द होस्ट. और कौन सा होस्ट हमारा, इकोलाई. और इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल कॉपी, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और इस चीज़ को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट. तो ये रिकॉम्बिनेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, नीचे चलते हैं. और अच्छा, you may have realized that normally unless one cuts the vector and source of the same DNA, the recombinant vector molecule cannot be created. अगर हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटा तो डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, हमने काट लिया, ठीक, हमने काट लिए डीएनए फ्रेगमेंट्स या फिर जो आइसोलेटेड मतलब जो डिजायरेबल जीन्स वाला डीएनए हमने उसको आइसोलेट करना है और सेपरेट करना है. अब हमने उसके लिए क्या करना है, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया. आगे वाला प्रोसेस देखते हैं. बहुत बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई वुड से वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एंड द पीपल हु वांट टू टेक बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर, या दे शुड लुक अप टू अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट. तो हमने कटिंग कर ली है. नाउ वी कैन बी सेपरेट. अच्छा, टेक्निक क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स. यस. नाउ दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड. यस, हम इनको एनोड की तरफ ले जाते हैं बिकॉज एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ट्यूब होती है अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, जो कि हम क्या यूज करते हैं आजकल, एग्रो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीपी. सॉरी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइंस रिसीविंग एवर द एग्रो जेल. एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. ये लाइन, स्मॉलर सेगमेंट साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही वो दूर तक जाएगा. ठीक है. फिर कहता है कि हमने सेपरेट तो कर लिया, अब हम उसको देखें कैसे, स्टेन करेंगे डीएनए को. तो किससे, इथिडियम ब्रोमाइड. इथिडियम ब्रोमाइड. फिर उसको यूवी एक्सपोजर देंगे और कैसा हो जाएगा, वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा. ठीक है. और फिर हम उसको क्या करेंगे, उस जेल पीस से, एग्रोस जेल पीस से एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं एल्यूशन. ठीक है, एल्यूशन. और इस तरीके से एक वो आ गया प्यूरिफाइड फॉर्म में. ठीक है. तो देखो स्मॉलेस्ट वाले किधर है, बहुत दूर दूर तक है, यहाँ से डिस्टेंस अगर देखें, और जो लार्जेस्ट है वो बहुत पास है. ठीक है. ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है. ये वेल्स है, हमने यहाँ पे डीएनए रख रखे हैं अंदर. राइट. अच्छा, अगला हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में. देखो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं. तो यू नो दैट प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज दोनों ही क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं. दोनों ही क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोम. यस, वेक्टर की खासियत होती है कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करना चाहिए. एंड बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर कॉपी पर सेल
are very important, are very much preferred over class. ठीक है, yes, and the number can given over higher 15 to 100 copies per cell बना सकते हैं ये. और इन्हीं वेक्टर्स को अगर हम देखें तो दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, तो जिसमें वेक्टर पहुंच गया वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट. जिसमें वेक्टर नहीं पहुंचा है वो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट. राइट. अब देखो गाइस, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है हमारा, विच इज, देखो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वेक्टर्स के बारे में है. ठीक है, देखो ये फीचर्स होते हैं जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर्स में होते हैं. फर्स्ट क्या है, ओराई. फर्स्ट क्या है, ओराई. अब ये क्या सीक्वेंस होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यू नो, और यहीं पे हमारा वो जो जीन होता है हम उसको लगा देंगे तो वो भी रेप्लिकेट होगा, है ना. तो जितनी आपको कॉपीज चाहिए होती है तो इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर जिसका हाई कॉपी नंबर हो. ठीक है, जिसका हाई कॉपी नंबर हो उस वेक्टर में ज़्यादा लगाओ, क्योंकि आपको उतनी ही ज़्यादा कॉपीज मिलेंगी. अब तक टारगेट दिए नहीं. ठीक है, फिर सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेबल मार्कर्स. अभी सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है, देखो नाम से इसमें कुछ भी समझ नहीं आता और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो है. ठीक है, तो अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर्स यू कैन थिंक दैट कि ये मार्कर है, ये आपको एक डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये डिस्टिंग्विश हेल्प करने में करता है. और क्या करता है ये, इट कैन, या ये हमारा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म से डीएनए को एक ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए में बदलने में भी हेल्प करता है. तो इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेंट. तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जब आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द होस्ट डीएनए पे आगे चिपक जाता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं. तो ज़्यादातर हमारे पास कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइलिन, कैनामाइसिन. ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिख रखी है कि जो नॉर्मल ई कोलाई के सेल्स होते हैं दे डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स मैंने बताए हैं कि नॉर्मल ई कोलाई में इसके अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है. ठीक है, फिर आता है क्लोनिंग साइट्स. क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं, जहाँ से क्लोनिंग शुरू, जहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, यस. और इसमें पूछा जाता है कि आपको कितनी क्लोनिंग साइट्स चाहिए. तो ज़्यादा क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतनी बार वहीं से वो कटेगा और आपका डीएनए खराब हो जाएगा. तो प्रेजेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग. ठीक है, तो ligation of the DNA is carried out at restriction site present in one of the two antibiotics resistant genes. For example, you can ligate a foreign DNA. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है होगा. हाँ, देखो अगर हमने ये देखो, ये है हमारा PBR 322. ठीक है, देखो इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 8. तो 8 इसकी क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइज या फिर 8 सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, या फिर क्लोनिंग साइज नहीं, सॉरी
8 क्या है, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है और 8 ही क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट सेम चीज होती है। सिलेक्टेबल मार्कर्स मैं बोलूँ तो 2 हैं, कौन कौन से, यू कैन सी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों की हम बात करने जा रहे हैं, BAMH1 एंड टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस की। देखो ये इसमें लगा दिया एट द टेट्रासाइलिन पे। अब क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे जिसमें ये लग चुका होगा, ये भी इनके पास टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगी ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, और अब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्टेड हो सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन, ठीक है, ये एम्पिसिलिन पे तो ग्रो हो गई क्योंकि एम्पिसिलिन तो कहीं नहीं गई। बट अगर जो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट भी हो चुका है, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, इट विल ओनली ग्रो इन एम्पिसाइलिन बट नॉट ऑन द टेट्रासाइलिन, बिकॉज नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम बोथ। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, देखो ठीक है। अच्छा, दिस डायग्राम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये देखो आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये देखो, ये तो पढ़ो प्लीज। इक्वलाई क्लोनिंग वेक्टर PBRC22 शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट हैं इसकी, और ये हैं इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी, हम सेलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं। रो कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो रो कोड्स फॉर द row codes for the proteins that are involved in replication of the plasmid, ठीक है। देखो yes, ये इनएक्टिवेटेड होता है बिकॉज ऑफ द एलियन डीएनए हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, एक और टेक्निक होती है, हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, विच इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप कोई भी फॉरेन डीएनए को, सपोज ये आपका डीएनए था, ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक एलियन डीएनए, सॉरी मैं आपको एक अच्छे से सिखाऊंगी, इसको ऊपर ले जाया जाए, ज्यादा ऊपर चला गया एक्चुअली। देखो ये है हमारा डीएनए, ठीक है। अब मैंने इस पे एलियन डीएनए लगा दिया, एलियन पीस ऑफ व्हाटएवर यू से, कि मैंने इस पे एलियन कुछ जीन लगा दिया, या बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है तो कलर ये लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज देखो, अब देखो ये हो गया इसके ऊपर एलियन पीस ऑफ डीएनए। अब जो मेरी इसके अंदर जो थी चीज वो तो हट गई ना, वो तो काम नहीं करेगी, उसका क्या हो गया, इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल किसका हो गया, इंसर्शनल हो गया हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए का, ठीक है। तो हमने ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस हमने एक पढ़ा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन या फिर एंजाइम के लिए,
ठीक है, ये प्रूव मुझे नहीं सब्सटेंस है। जो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है क्योंकि इसमें ये इनएक्टिवेशन हो जाता है इसका, ठीक है। बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें ये जीन नहीं आई है, वो क्या करेगा, वो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीन में ये अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट और एब्सेंट का खेल है। अगर प्रेजेंट है तो ब्लू कलर, नहीं प्रेजेंट तो कलरलेस कॉलोनी, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सी वेक्टर्स चलते हैं। देखो आ जाओ, तो यहाँ पे एक नाम आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन। अब ये क्या था, ये एक वेक्टर की तरह हमने काम करा। कैसे? इसको हमने डिफार्म करा। क्यों डिफार्म करा? क्योंकि ये एक क्या था, ये पैथोजन था। किसका? डाइकोट प्लांट का। इसके डीएनए में क्या होता है, इसके डीएनए को बोलते क्या है, इसके डीएनए को हम टी डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी डीएनए। ये क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए होता है। और इसके प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं? वेरी वेरी फेमस थिंग्स है ये। इसके प्लाज्मिड को बोलते हैं हम, देखो इसके प्लाज्मिड को बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम। अभी इसको हम इसको डिसॉर्म कर देते हैं। कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? डिसॉर्म डिसॉर्म डिसॉर्म, अरे वेरी इट इज रिटन। अच्छा, ये यूकेरियोटिक होस्ट में आता है, ठीक है। ह्यूमंस के लिए कौन सा होता है? ह्यूमंस के लिए रेट्रोवायरसेस होते हैं। जी हाँ, इसको हम डिसॉर्म कर देते हैं। तो नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक कॉम्पिटेंट होस्ट का क्या फॉर्म होता है और ये कैसे बनता है। मतलब एक होस्ट को हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं, मतलब कंपैटिबल कैसे बनाते हैं कि वो इन्हें डीएनए को अलॉन्ग विद द वेक्टर इंट्रोड्यूस करने दे। बट टुडे वी आर गोइंग टू रीड टिल हियर and I'm closing the video and hope you like the video, and there is a part 2 coming very soon. Yes, I will be uploading those 2 parts differently, but I'm going to make it in the same video because different videos help to memorize more because it has a gap because you have to play another video, and it is short, so you see the video short, so you get more excited to see it than a long hour video. So bye guys, and hope you like the video, hope you comment down what I asked you to do, and hope you subscribe to my channel for more informative videos, for more biology content, and if you want math content, then tell me, I will just do it for you guys. Although I am not going to study math anymore, and yeah, it's not a very sad part of my life. But yeah, I'm not going to use maths in my daily life anymore. Yeah. So hey, no more sad animals. But yeah, bye. So we are going to start off with this topic in the next video. Bye guys.